diring ma thatpo song ladak nang pe sugdu se tene ikchanga akash lama skundun kabo tene bihare budgay na ngatange nangpe tene kaka sangyas tukje chan sangyas azat te gumpa bo tene hindu unikane tene lakne thenche se ma kone lasgul chenmojik kone shula zaden yonstenok sangmala thugüzinok yang ladak mangpojik ina thusang thustenok innang tene diring kongrang ladak las kches po nyesam bena ngatang laks pa sangme pema tatposung tene kon ne thopa changmale kawo ngata All India Buddhist Forum Zashkan be I Lasgul Boshulo nok teve member khakchan gunang kone poskoti duk tene laks pa sangme pema tatposung tene diring e tene I press conference choche se tontak po tene thorele ngatange chubi yangse community hale nanga tene akash lama skundun nang khone thopa changma tene I lasgul bo kango choksiga chat tene I pechi chogo se duk tene ngatang Himalayan tene rigudina dukan migun ka chi khak duk zashkan bo teo khone teka mola zache zinok te phya tene ngatang samshigi mi ma samanga teka shkote tene khone sungshat kunla nyan goshi zinok yang ngatang thukdap zache zinok teka tene stigma ne ngatang I lasgul bo tene kazua ken la kherin tena tene ngatang laks pa one chi khak chigon te zarkan bo te changma ngatang thuksam sala zache zinok chia juna scholarship ngatang teo charuk tene yare skill la tene budga chaches po ngatang ini ma kakspo charuk thakring ni nok tene chat songpa sangna lep thuwa miruk teo ngaje daksa khong la juice pin inna gun ngatang e chala mane chang ngatang skala cha miruk mardong ngatang mi jalmi mangpo lojung phepsa nok te changma aka thusa zatuk I lasgule nanga tene stigma ne te chok zat boshe zinok chamshik ladak spa tene budga yashkot nang tene I lasgule na thuste aka jakma khachik jukste tene khon la spospair ga sal goshe zinok ngatang ladak spa one I tene lasgul chenmo bo tene il chit po khone namste no akash lama skundune ngeja changme tene mangpo sanin nang jukste no khone score la khone chi choruk khone chaglas chi zat duk zerte tene te ngata logus pena nga michale tene ibo kazuga ngata nang pe inok zashkan bo teo tantan ngata nang pe no ina chang tene thetsum mane metkat goma tene ngata ashok ngata nyan me German hole kasa khogune te ka chatta bazat kaptene gompele te sting ne tene mane mangpo te ka jipso sang phula zat kaptene ngata logisna chana ibo mane nangpe inkan bo sangsang ngata jikten na yusinok test ko la nge detail na mangpe miju ngata thore test ko la ngata tukdap no zache jinok mi changma mangyung hangwa no yo ngata nangpe nasa inok zerte te oskot pasangna tene nge yang sker nge te wujun thore mi ma sangmanga chutot sume kainle ngata chubi yang se community hale nanga ngeja changma ngata la swa changma skot gos yang ina thus gos tebo nge kane jwa phulchen tene nge akash lama skundun la tene khora thuksam bo tene hindi na ngonchuk jeste nge jwa phulin akash lama skundun तमाम जितने भी चैनल यहाँ पर है तमाम चैनल के मार्फत सभी लद्दाख वासियों को जुले ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और भारत के तमाम बौद्ध संगठन के तरफ से और विशेष करके लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो हमेशा मुद्दे के लिए लद्दाख हो या पूरे देश भर के कोई भी आंदोलन हो इसमें सम्मिलित रहते हैं। और जब हम लोग ने 3 साल पहले महाबोधि महाभियान मुक्ति आंदोलन शुरू किया था और 26 नवंबर 2024 में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बोधगया में जब शांति रैली की थी,
बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त करे। शांति रैली थी जिसमें 50,000 बौद्ध आए थे 22 राज्यों से। उसमें लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के तरफ से काफ़ी उपासक उपासिकाएं, लामा, टुल्कू सभी आए थे। और हमेशा अगला जो हम लोग ने फिर 17 सितंबर 2024 में भी शांति रैली पटना में किए थे। इसमें भी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का तरफ से और तमाम लद्दाख की बौद्ध अनुयायी के तरफ से काफ़ी आप लोग समर्थन दिए थे। और आंदोलन अभी 12 फरवरी से 2025 से हम लोग ने अनशन शुरू किए। आप सभी को मालूम है बौद्धों की सबसे पवित्र जगह, हमारे मन में बौद्धों की सबसे पवित्र जगह है बोध गया महाबोधि महाविहार। इसमें अभी भी संविधान जब लागू हुआ था 26 नवंबर 1950, उससे पूर्व जो का कानून अभी भी चली आ रही है। हालांकि आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है कि कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था उससे पूर्व कानून शून्य होती है। आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है भारत के संविधान के। लेकिन वहां पर अभी भी बीटी एक्ट 1949 चली आ रही है, जिसमें 9 मेंबर कमेटी में रहेगी। वो कमेटी का नाम रहेगा BTMC बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें 9 में से सिर्फ 4 ही बौद्ध है। इतनी अन्यायपूर्ण कानून किसी धर्म के लिए नहीं है, बौद्धों के लिए है। आज मुसलमानों की मस्जिद मुसलमान ही संचालन कमेटी में रहते हैं। आज लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के कमेटी में लद्दाख बुद्धिस्ट ही रहेंगे ना कमेटी में, दिल्ली के बुद्धिस्ट तो नहीं रहेंगे। तो जैसे हिंदू के मंदिर में हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियन के चर्च में क्रिश्चियन रहता है, तो बौद्धों के सबसे पवित्र जगह में 4 ही बौद्ध है। तो हमारी मांग है कि पूरी 9 में चेयरमैन लेकर सभी बौद्ध हो और BT एक्ट 1949 निरस्त हो। इसके लिए 1991 में भी भंते सुरेश देसाई जो जापानीज मॉन्क थे उन्होंने आंदोलन की थी, लेकिन उस आंदोलन को विफल किया गया। उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, लोगों को जानकारी नहीं थी। भंते करुणाकर उस आंदोलन में थे, हालांकि चरम आंदोलन हुई 5-5 लाख, लेकिन फेल हुआ। लेकिन उस आंदोलन के बदौलत सेक्रेटरी रखा गया बुद्धिस्ट को। तो हमारी पूरे भारत से ये मांग है कि BT एक्ट 1949 निरस्त हो। इसीलिए सरकार को इतनी ज्ञापन देने के बावजूद भी LBS भी काफी ज्ञापन गया है इंडिविजुअल लेवल पर। लेकिन हम लोग तमाम बौद्ध संगठन के तरफ से एक सूत्र में बांधकर हम लोग ने ये 3 सालों में प्रयास की, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। तो हम लोग ने 12 फरवरी से भूख हड़ताल शुरू किया। आज 155 दिन है। महाबोधि के सामने अनशन किए थे। 15 दिन के अंदर उन्होंने वहां से रात के 12 बजे उठाया गया। उस दिन में बिहार के होम सेक्रेटरी ने इतनी अच्छी बात की थी कि आपके प्रॉब्लम 10 दिन में सॉल्व होगी, लेकिन उसी रात को भिक्षुओं को रात को उठा दिया गया 12 बजे। फिर हम लोग 2 मोहन में बैठे, फिर वहां से 16 तारीख मई को उठाया गया। अभी निंगमा मोनेस्ट्री में थे, उसके बाद अभी विशुद्धानंद माथेरो के मोनेस्ट्री में धरना चल रहा है। अभी जब 100 दिन कंप्लीट हुआ धरने का, तो मैंने फैसला किया कि मैं बाहर निकलूंगा, हमारे लोगों को जताऊंगा। तो हमने 1 जून से नागपुर से जनसभा शुरू की। इस प्रकार नागपुर, भंडारा, पुणे, भोपाल, रायपुर, दिल्ली, आगरा, झांसी, बदायूं, संकीसा में तो 15-20 हजार थे। बंगाल में मालदा में, हैदराबाद, बेंगलोर। तो इसी क्रम में ये 4th जो राउंड है, ये लद्दाख
और नोएडा में थी, तो मैं यहाँ लद्दाख में आया हूँ। विशेष करके ये अपील करने आया हूँ कि हम एक सूत्र में बांधें, क्योंकि देखिए हम सरकार से एक ही अनुरोध कर रहे हैं, आप कुछ भी चीज बोलेंगे हम मानेंगे नहीं। एक नंबर, आप वहां पर, हम किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है, हम किसी जाति के खिलाफ में नहीं है। आप यदि विष्णु का अवतार मानते हैं तथागत बुद्ध को, आप मानिए, हम लोग का त्रिपिटक में, हमारा छोई में कहीं भी नहीं लिखा है। आप मानते भी हैं तो आप किसी भी विष्णु मंदिर में हमारे बुद्ध की मूर्ति दिखा दीजिए, या हमारे लामा या भंते कोई भी कमेटी में हो। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 जो धार्मिक स्वतंत्रता देती है, इसके आधार पर हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं। और मैं अपील करना चाह रहा हूं विशेष करके लद्दाख के सभी बुद्धिजीवी, लामा, रिम्पोर्चे, हमारे उपासक उपासिका, विभिन्न संगठन जितने भी है, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है या एक संगठन की नहीं है। अभी अभी हम लोग ने, भंते सुरेश देसाई ने 2012 में रिट पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका कोई हियरिंग नहीं हो रहा था। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से चंद्रमोती पाटिल जी ने भी इंटरवेन किए थे 2018 में, कोई हियरिंग नहीं। हम लोग ने ये धरने से 10 मार्च में इंटरवेन किए। क्यों? भंते सुरेश देसाई का जो रिट पिटीशन है, अभी तक 12-13 साल में कोई हियरिंग नहीं हुई, तो कम से कम 16 मई में हियरिंग हुई है और फाइनल हियरिंग 29 जुलाई को है। तो इसीलिए हम लोग ने अभी दिल्ली में 25 और 26 में धरने में बैठ रहे हैं, जंतर मंतर में। आप लोग भी आइए वहां पर अपनी वेशभूषा में। हम बुद्धिस्ट कितना डेस्परेट हैं, सिर्फ भारत के नहीं, पूरे विश्व के। और इस बार का आंदोलन कोई एक राज्य से केंद्रित नहीं है, जैसे पहले का आंदोलन हुआ था महाराष्ट्र से ज्यादा थे। इस बार का आंदोलन हमारे हिमालयन बेल्ट के, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, दार्जिलिंग हो, पूरा नॉर्थ ईस्ट हो और पूरा मेनलैंड हो, सभी के इन्वॉल्वमेंट है। आंदोलन को दबाने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन हम एकजुटता से हम लोग काम कर रहे हैं। और 29 जुलाई में जो फाइनल हियरिंग हो रही है, इसके हम तैयारी में हैं। अभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से काफी बात हुई है, फिर भंते सुरेश देसाई के एडवोकेट से भी 22 तारीख को हम लोग का टीम का एक मीटिंग है। हम बौद्ध लोग शांति प्रिय है, इसका मतलब हम लोग सहमत, शांति बैठना सहमति नहीं होती है। अभी तक बौद्धों ने कभी भी सड़क में नहीं उतरा अपनी मांग के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम सहमत हैं। हमारी महाबोधि महाविहार में कमेटी में पूरा पूरी बौद्ध हो। आज पटना में एक महावीर मंदिर चलती है, महावीर के मंदिर, उससे कैंसर हॉस्पिटल चलती है महावीर मंदिर से। लेकिन हमारे महाबोधि महाविहार में महावीर मंदिर से कई गुना डोनेशन आते हैं, उसका कुछ हिसाब किताब नहीं है, आप गए होंगे। तो इसी आधार पर हम लोग अपना मांग रख रहे हैं। और मैं अपील कर रहा हूं, कल कुछ आकाश लामा को कुछ होता भी है तो आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, आंदोलन चलना चाहिए। जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, परंतु शांति से। कोई उग्र नहीं, कोई रेल रोको आंदोलन नहीं, कोई सड़क जाम आंदोलन नहीं, संवैधानिक प्रकार से, शांति से। और एलबीए का बड़ा भूमिका रहता है कि हम जब से आंदोलन शुरू किए हैं, एलबीए को हम लोग धन्यवाद देने आए हैं। और कल एक सभा रखी गई है इस धम्म भूमि में। अभी मैं सुबह थोड़ा घूमा था इस क्षेत्र में, हमको लगा हमको भी यहाँ पर एक घर बना लेना चाहिए, धम्म इतने पवित्र जगह है। तो इस जगह से एक बड़ा मैसेज जाए कल की सभा से, और आपके द्वारा सभी से अपील करते हैं, वहाँ जगह हो ना हो आप लोग आइए, क्योंकि ये लड़ाई जितनी हमारी है उतनी आपकी है। आपकी ये जो हम लोग सभा कर रहे हैं विभिन्न इलाकों में, इसका मेन तात्पर्य क्या है कि सरकार को बताना, या सुप्रीम कोर्ट को बताना, देखिए जो भी हो, महाबोधि महाविहार बौद्धों का कमेटी में पूरा पूरी कमेटी में हो। जिस प्रकार से
राम मंदिर की एक, अयोध्या की एक परमानेंट सॉल्यूशन की गई। हम लोग बहुत चुप रहे। अयोध्या को साकेत नगर कहते थे, हम बहुत चुप रहे, लेकिन महाबोधि महाविहार के लिए हम चुप नहीं रहेंगे। तो ये कल की मीटिंग का अपील है, आप लोग जरूर आइए और हम लोग साथ मिलकर जरूर जीतेंगे। और 25-26 को जंतर मंतर में धरना है, आप लोग जरूर सम्मिलित होइए। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए फिर से लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और तमाम लद्दाख के संगठनों को, लामा रिम्पोर्से को धन्यवाद देते हैं। एक पवित्र जगह जब मैं आज गया था, वहाँ तथागत बुद्ध के मूर्ति के ऊपर, वहाँ पर वो इंद्रनी लगा हुआ था, रेनबो लगा हुआ था राउंड। तो हमको इतना स्काई में तो हमको लगा ये आशीर्वाद लद्दाख को है, हमको है, और हम लोग निश्चित से हम लोग जीतेंगे। एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करके ही रहेंगे। 29 जुलाई फाइनल हियरिंग नहीं हो सकती है, लेकिन हम लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और सभी संगठनों को धन्यवाद। जिस तरह से जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर यहाँ पर विजिट किया था किरण रिजिजू जी, हमने उनसे पूछा इस पर से भी, उनका कहना है अभी ये मामला कोर्ट में है, इसके कोर्ट के जो फैसले के ऊपर भरोसा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आंदोलन हम लोग ने शुरू किया, ये कानून जो बीटी एक्ट 1949 है, ये बिहार का कानून है। हम लोग ने इस आंदोलन के दौरान नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 4 बार मीटिंग की, जिसमें हमारे नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में आप ही के राज्य के रिंचेन लामू बुद्धिस्ट मेंबर थी, उनको सिलीगुड़ी बुलाया गया, बोध गया भी आई थी। उन्होंने पत्र लिखा, केंद्र को पत्र लिखा। केंद्र कहता है ये राज्य का मामला है, राज्य कहता है केंद्र का मामला है, राज्य कहता है कोर्ट का मामला है, केंद्र कहता है कोर्ट का मामला। कोई अपने हाथ में वोट बैंक देख रहा है। सीधी सीधी बात। आज हमारे बुद्धिस्टों की उपस्थिति देखिए, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जब गठन किया गया था, ये फोरम का नाम है, मतलब हिंदी में होता है परिसंघ, संघ मिलकर परिसंघ, जिसमें कोई भी संघ मिलकर, जैसे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, तो हम लोग कोई मेंबरशिप ड्राइव नहीं करते हैं। तो आपका जो प्रश्न का उत्तर मैं दिखा रहा हूं, मैं भी किरण रिजिजू से मिला हूं, हमारे टीम, ये बाध्यता है उनकी, और अभी वो सही कह रहे हैं, कोर्ट का मामला है। तो कोर्ट का मामला है, तो अभी 29 जुलाई को हियरिंग, फाइनल हियरिंग भी है। हम लोग 29 जुलाई को वेट कर रहे हैं। यदि कोर्ट हमारे फर्म नहीं देती है तो आंदोलन और चरम होगी। और कोई कह रहा था कि ये बिहार का मामला है, बिहार बोल रहा केंद्र का मामला। तो हम लोग का एक ही प्रश्न है, महाबोधि महाविहार वर्ल्ड हेरिटेज है, यूनेस्को डिक्लेयर किया है, और जहां पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जहां पर इन्वॉल्व होती है, वहां पर केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व होती है। तो आज आपको मैं बता रहा हूं, बिहार में बोधगया में खाली धरना नहीं हो रहा है, बोधगया के आसपास 8 गांव में धरना हो रहा है, अभी पूरे देश में धरना हो रही है। और मैं ये भी अपील करता हूं, आप लोग भी ये धरना कल से शुरू कर दीजिए, और निश्चय हम लोग जीतेंगे, ये आशा रखते हैं।